Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching Inglit, and in this video we are going to explain the poem An Introduction by Kamala Das. Actually this is the introductory part of her life when she evolved herself, when she realized her existence and the challenges in her life. क्या उसके लाइफ में चैलेंजेस थे, एक जो अपने लिए एक नीश क्रिएट करने की बात होती है सोसाइटी में. So in order to create that niche, what were the basic problems that she faced? What were the cultural challenges, linguistic challenges, regional challenges that came in her way to become an entity in herself? उस तरीके से आप उसको इंट्रोडक्शन की तरह ले सकते हो. Introduction refers to the introductory phase of her life. As far as themes are concerned, so through this poem she wants to bring to the notice of the people the femininity, her growing femininity, and it can be a particular case to Kamala Das, but it is a general phenomenon when we talk about the patriarchal society. तो एक ये एक जनरल चीज़ है जो कि हर महिला को, हर वुमन को कहीं ना कहीं इन वन और अदर फेज ऑफ हर लाइफ शी हैज़ टू फेस. सो वो एक पर्टिकुलर केस पे हो सकता है, वो एक जनरल केस पे हो सकता है. Then it's all about marriage. So marriage is also one of the important phase in her life when the complete life changes from one phase to another. So the cultural assimilation, cultural difference, adjustment, maladjustment, treatment of the people, treatment with the people. So there are many changes that come up with the marriage. So marriage is also one of the themes. Cultural dominance. Cultural dominance means a particular area, the people of that area, they follow certain culture and then they simply don't follow, they let other follow or they force other follow these things. Particularly women have been culturally subjugated, so they are primarily expected to do certain jobs which form their personality and which form their identity. A woman is identified as a woman or accepted in a society when she adjusts herself with certain norms of the society, norms of the family, roles of the family, when she fits in certain roles. सो वो कल्चरल डोमिनेंस भी एक तरीके से यहाँ पे चैलेंज की तरह उसके सामने है. देन इट इज़ लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म ऑल्सो. व्हेन सर्टेन लैंग्वेज इज फोर्स्ड अपॉन यू, यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन सर्टेन लैंग्वेज, लेकिन आपके ऊपर एक और दूसरी लैंग्वेज थोप दी जाती है, या फिर आप जिस लैंग्वेज को चाहते हो अपने आप को एक्सप्रेस करना, उस लैंग्वेज से आपको डिप्राइव किया जाता है या फिर एक इंटरपेलेट किया जाता है कि ये दिस लैंग्वेज इज़ नॉट फॉर यू. आप अपनी नेटिव लैंग्वेज उसको यूज़ करिए, उसी में एक्सप्रेस करिए. सो दिस लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ सर्टेन अदर पीपल. उस लैंग्वेज के नाम पर भी एक डिवाइड क्रिएट किया जाता है, वो भी यहाँ पे इसको फेस करना पड़ा. Then there is freedom. Ultimately it is all about freedom. You all know what kind of poet, what kind of writer Kamala Das has been. She has been a champion for the cause of women, for the freedom of women. Through her own example, she expressed the voices of many ladies, many women who could not express themselves, who could not raise their voice for themselves. So freedom, जेंडर फ्रीडम और कंपार्टमेंटलाइज्ड रोल्स जो होते हैं उनसे फ्रीडम, वो भी यहाँ पे एक है. और अपने आप को एक लैंग्वेज में कन्फाइन ना करके, और इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन मल्टी लैंग्वेज और इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट मल्टी लिंगुअल फार्मूला, सो देयर शुड नॉट बी एनी चेक, देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन. तो उसके लिए भी यहाँ पे एक बात है. Then equal rights. On the one hand, we are politically free, we are politically independent, we are a democracy. Still, there are certain roles, certain norms which are prescribed for women, which are different from women, for women and different for men. So वो एक equality जो कि books में है, रिटन में है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर शायद वो नहीं दिखती. तो उसके लिए भी यहाँ पे कमला दास को फील हुआ कि वाई शुड नॉट रेज अ वॉइस अगेंस्ट दिस इम्पार्शियलिटी और दिस हिपोक्रेसी, जो कि कहने के लिए तो फ्रीडम है लेकिन, और इक्वल राइट्स की बात है, लेकिन डू वी रियली एन्जॉय अवेल इक्वल राइट्स.
तो वो सर्टेन थीम्स आपको इस पोम में मिल जाएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1965 इन समर इन कैलकाटा। समर इन कैलकाटा इज एन एंथोलॉजी एंड इन दिस एंथोलॉजी इट वॉज पब्लिश्ड. It is the introductory poem. It can be called an introductory poem, which shows the introductory ideas. In fact, introductory से आप इसमें एक भी कह सकते हो raw और rawest ideas about femininity. When she realized her femininity, her emerging existence as a woman, and what were the challenges in the society against that realization. तो वो उससे भी आप उसको इंट्रोडक्शन को रिलेट कर सकते हो. नाउ टॉक्स अबाउट द पोम इटसेल्फ. आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर. व्हेन एवर यू डोंट फाइंड एनी पंक्चुएशन मार्क्स at the end of the line, this is called enjambment or run on line. A run on line means when the sense is not completed in one line, so the poet lets it carry to the next line. और अगर नेक्स्ट लाइन में भी कंप्लीट नहीं होती तो वो और अगली लाइन तक, यानी जब तक आपके पास में कोई पंक्चुएशन मार्क आ ना जाए. पंक्चुएशन मार्क नॉर्मली कॉमा और फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप तक मतलब पार्शियल पॉज है, पार्शियल कंप्लीशन है आपकी थॉट का, और फुल स्टॉप मतलब यू हैव कंप्लीटेड योर थॉट, सो योर थॉट इन टोटलिटी. बट जब तक वो पंक्चुएशन मार्क नहीं आता तो यू रीड द लाइन अगेन इन अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेकेंड लाइन. अगर आप एक लाइन को सिर्फ उसमें ही समझते हो, एक लाइन का अपना इंडिविजुअल मीनिंग निकालते हो, तो एंजॉयमेंट वाले केस में शायद आपको मीनिंग वो कंप्लीट ना मिले. अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स फॉलो करते हो पोम के अंदर तो वो आपकी एक्सप्लेनेशन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, कॉम्प्रिहेंशन को मल्टीप्लाई कर देता है. तो ऐसे पढ़ना है इसको. आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर. एटलीस्ट यहाँ तक आपको पढ़ना है. अब बात यहाँ पे एक सार्केज्म भी है, डुअलिटी ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन फॉर द वीमेन. अब एजुकेशन के नाम पे आपने कह तो दिया कि एजुकेशन इज फ्री टू ऑल, फ्री टू बोथ मैन एंड वीमेन, बोथ द जेंडर्स. बट किस तरह की एजुकेशन आप दे रहे हो और क्या उसका प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या बिहेवियरल उसका आउटकम है. जैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे सीधे बात है कि एट द टाइम व्हेन शी रोट दिस पोम और व्हेन शी फेल्ट द प्लेस ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी, तो क्या वीमेन के लिए पॉलिटिक्स में कितनी जगह थी, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, उसको यहाँ पे कह रही है. कि शायद उनको नॉलेज हो सकती है पॉलिटिक्स की, वो भी नॉलेज भी कैसे आगे लाइन में आएगा, कैसे रोट लर्निंग. उनको बस सिलेबाई के नाम पर रटा दिया जाए कि भाई ये नेता हैं, ये नेता हैं, और ये दिस इज़ हाउ द पॉलिटिक्स रन्स. लेकिन कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वीमेन के लिए होंगी उस पॉलिटिक्स में, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है आपकी पूरी थॉट पर. सो आई डोंट नो पॉलिटिक्स. She doesn't know the practical aspect of politics because उस समय शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो उसको भी यहाँ पे इन्होंने लपेट लिया. I know the names of those in power. हाँ, the then politicians, जो उस समय के politicians थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे और दूसरे भी हों, तो उनका नाम इनको पता था. और नाम इसलिए पता था क्योंकि वो या तो वो सिलेबाई में पढ़ाया जा रहा है या फिर टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर में वो आपको बार बार दिखाई देता है. सो यू हैपन टू रिकलेक्ट दोज नेम्स. सो आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ बिगिनिंग विद नेहरू. जिस तरह से बच्चों को हम रटा देते हैं, याद करा देते हैं कि ये डेज ऑफ द वीक हैं, ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है, ये मंथ्स के नेम्स हैं, तो वो भले ही उन बच्चों को उस बात की अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो कि वाई जनवरी इज़ कॉल्ड जनवरी या संडे इज़ कॉल्ड संडे. सो कॉन्सेप्ट भले ही ना पता हो, लेकिन उनको हम डेज, और इनफैक्ट ये भी ना पता हो कि आज कौन सा दिन है और क्यों है, लेकिन उनको नाम पता होता है. मतलब इफ़ यू आस्क हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, सो दे रिकलेक्ट. तो वो एक रोट लर्निंग की बात है. तो यहाँ पर भी क्या है कि वीमेन के लिए पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही थी जैसे कि बच्चों के लिए 2 का टेबल या फिर डेज ऑफ द वीक और डेज ऑफ द मंथ. शी न्यू हु नेहरू वॉज. अदर देन दिस शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा लेना देना इसलिए था भी नहीं.
फिर बात, खैर ये बात छोड़िए, अब मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, तो ये एक सार्केस्टिक यहाँ पे हो सकता है। फिर बात बताती है कि मैं अपने से शुरुआत करूँ। What I am, who I am an Indian, very brown, very brown मतलब I belong to that area which is identified by the color of the skin। अब जैसे ये she belongs to केरला, अब साउथ में जनरली जो कॉम्प्लेक्सन जो है वो डार्क हो जाता है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशंस। अब वहाँ के लोगों को आप कई बार फिर क्या है, कलर से ही आइडेंटिफाई करते हो। इफ़ यू हैपन टू सी समवन विद स्वार्थी कॉम्प्लेक्सन, डार्क कॉम्प्लेक्सन, सो यू टेंड टू से दैट ही इज़ फ्रॉम साउथ। तो वो इसलिए उसने एक एम्फेसाइज किया है कि आई एम इंडियन वेरी ब्राउन। एक तो इंडियन को ही ब्राउन कहा जाता है, यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर लिया। ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप अगर देखोगे तो ऑक्सीडेंटल वर्सेस ओरिएंटल, तो हम ओरिएंटल कंट्रीज़ में जियोग्राफीज में आते हैं, और जो वाइट वर्सेस ब्लैक, वाइट वर्सेस कलर्ड पीपल, तो हम उनके लिए कलर्ड पीपल ही हैं। इंडियंस को ब्राउन ही कहा जाता है। तो ब्राउन एक तो टोटल इन टोटलिटी, और पर्टिकुलरली इंडिया में भी कौन सा, साउथ का एरिया ज़्यादा ब्राउन। सो आई एम इंडियन वेरी ब्राउन, born in Malabar. Malabar is a small place in Kerala. I speak 3 languages. ये इंटरेस्ट की बात है। She feels like knowing many languages. तो जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती हैं वो अच्छी बात है। That lets you an extra advantage in order to acclimatize with the certain situation. अगर आप डिफरेंट जगह पर भी जाते हो तो जितनी लैंग्वेज आपकी आती हैं वो आपका एज होती है, वो आपकी स्पेशल क्वालिटी बन जाती है। तो यहाँ पर अगर 3 लैंग्वेजेस, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच 3 लैंग्वेजेस शी न्यू। तो एक तो हिंदी, मलयालम, इंग्लिश। शी न्यू 3 लैंग्वेजेस। राइट इन 2, विच 2? मलयालम एंड इंग्लिश। She wrote in 2 languages, Malayalam was her native tongue, native language, mother language. Dream in one, which one? English. She feels like writing something. Dream मतलब imagine मतलब जो आपकी, if you feel like writing something, अगर आपको एहसास है कि आप राइटर हो और आप लिखते हो या लिखना चाहते हो, तो वो लैंग्वेज आपका एक्सप्रेशन, एक आपको मीडियम भी चाहिए। मीडियम वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको सहजता होती है, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल फील होता है। तो शी फील्स कंफर्टेबल इन इंग्लिश, शी फील्स लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, शी फील्स लाइक इमेजिनिंग इन इंग्लिश, शी ड्रीम्स इन इंग्लिश। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर, दिस इज़ हाउ शी स्टार्टेड हर लाइफ, जो कि इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बात है। डोंट राइट इन इंग्लिश, हेयर द चैलेंजेस। दिस इज particularly linguistic, kind of linguistic chauvinism. Linguistic chauvinism is when somebody forces some language upon you or somebody restricts you to use certain language. तो वो लैंग्वेज के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, आपको टॉर्चर किया जाए या आपको फोर्स किया जाए, वो सब लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म में काउंट होता है। तो ये पूरे स्टैंजा में आपको इसी तरह की बात दिखेगी कि लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट एंड शी फील्स लाइक राइटिंग। उसको लगता है कि भाई राइटिंग एज अ राइटर शी हैज़ अ ब्राइट करियर, और इफ़ शी कैन मेक हर करियर, मेक हर चॉइसेस इन हर लाइफ, तो उसको लिखना चाहिए, उसको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आवाज़ के लिए आपको होना चाहिए एक एक्सप्रेशन, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज एक एरिया और एक दूसरी लैंग्वेज। एक तो एरिया की लैंग्वेज आपकी मलयालम जो आपकी मदर टंग है, और फिर एक जो आपने अपने लिए चूज़ की है, जो एक लैंग्वेज अपने आप के लिए सिलेक्ट की है कि ये लैंग्वेज मुझे सूट करती है, मेरे आइडियाज़ को सूट करती है और मेरे एक्सप्रेशन को सूट करती है। इट इज़ नेचुरल टू मी, आई फील लाइक स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। लेकिन यहाँ पे फिर आता है चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज बाय द सोसाइटी। तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर के बात करना ये हिम्मत का काम होता है। तो यहाँ पे क्या है, डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड,
ये कौन है? दे, हु आर दीज? ये वो 4 लोग हैं दुनिया के। हमेशा आपको वो 4 लोगों का ताना हमेशा फेस करना पड़ेगा। 4 लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो वो वही 4 लोग हैं। इन 4 लोगों ने आपकी पूरी लाइफ को हेल बनाया हुआ होता है। तो वो 4 लोग हैं। उन 4 लोगों में से कह दिया कि डोंट राइट इन इंग्लिश। अरे भाई इंग्लिश में क्यों? यू बिलोंग टू केरला, यू बिलोंग टू दिस लैंग्वेज मलयालम, मलयालम इज़ योर मदर टंग, एंड देन डोंट राइट इन इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर। अब यहीं से आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। वाई डोंट यू राइट इन योर मदर टंग? उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील तो आप अपनी मदर टंग में करते हो। तो मलयालम में लिखिए, इंग्लिश में क्यों लिखना? इंग्लिश में मत लिखिए। इंग्लिश इज़ नॉट योर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को यहाँ पर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज, अ मीडियम। उसको आप पॉलिटिक्स आप जोड़ करके देखोगे तो यू टेंड टू misjudge the people, you tend to do injustice with the people, certainly। आप या तो linguistic chauvinism के आप परपेट्रेटर हो जाओगे या विक्टिमाइज्ड हो जाओगे अगर आप लैंग्वेज को पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखोगे। अनफॉर्चुनेटली होता यही है, लैंग्वेज को हमेशा ही कल्चर एंड पॉलिटिक्स, कल्चर तक तो ठीक है लेकिन पॉलिटिक्स में जहाँ पे आप लैंग्वेज को जोड़ के चलते हो तो आप यू टेंड टू डिस्क्रिमिनेट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी वही है, मतलब यू हैव सर्टेन बायसेस, ये सर्टेन प्रेजुडिसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट दोज कॉलोनाइजर्स, एंड देन यू हेट देयर लैंग्वेज ऑल्सो। उनको हेट करना एक हद तक जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन हेटिंग अ लैंग्वेज इज नॉट जस्टिफाइड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इफ somebody feels like expressing him or her in that language, तो वो लैंग्वेज उसने खुद चूज की है, लर्न की है, उससे उसकी कल्चर नहीं बदल जाती, उससे उसकी पहचान नहीं बदल जाती। तो यहाँ पर उसको पहला चैलेंज तो ये मिला, डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग। अरे भाई इंग्लिश आपकी मदर टंग थोड़ी है, मलयालम इज़ योर मदर टंग, you speak in that, you write in that, you express yourself in that language, this will suit you, this is natural to you। अब उन्हें क्या पता कि मलयालम भी नेचुरल है, तो इंग्लिश उसने सीखी है, इस तरीके से सीखी है दैट शी फील्स कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। अगर उसको फील हो रहा अंदर से, तो हु यू आर टू डिक्टेट द टर्म्स फॉर हर टू राइट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और टू रिस्ट्रिक्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। आप कौन होते हो भाई? ये पर्सनल चॉइस है। अब एक राइटर को या एक ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट को कंडीशंस में आप कंपार्टमेंटलाइज थोड़ी कर पाओगे। इफ़ यू कन्फाइन एन आर्टिस्ट, सो यू कन्फाइन हिज और हर इमेजिनेशन, यू कन्फाइन हिज और हर एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हो, कस्टमाइज करते हो, और कस्टमाइज या कंपार्टमेंटलाइज करने से आपने क्या किया, उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन है उसको आपने ख़त्म कर दिया। सो ये आपकी मदर टंग थोड़ी है, तो इसको आप यूज़ मत करिए। वाई नॉट लीव मी अलोन? नाउ शी फील्स रेस्टलेस, शी फील्स इरीटेटेड। अरे कि भाई, अरे आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। यू माइंड योर ओन लैंग्वेज, यू माइंड योर ओन बिजनेस। आप अपनी लैंग्वेज, अगर तुम्हें ज़्यादा प्यार है मलयालम में तो बोलते रहो, बोलो, हमें क्या मतलब। वी ऑल्सो लव मलयालम, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई कैन नॉट यूज एनी अदर लैंग्वेज। ये तो वही बात हुई कि हिंदी मेरी मदर टंग है, और अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो सारे लोग ये कहेंगे कि लो ये अंग्रेज़ हो गया, ये तो हिंदी से नफरत करते हैं। तो ऐसी बात थोड़ी है। इंग्लिश इज़ माई प्रोफेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज़ माई मदर लैंग्वेज। इफ़ आई हैव अचीव्ड सर्टेन proficiency in English, so that is my choice. Who you are to judge me, to dictate the terms for me to use this language, to discontinue this language? तो आप थोड़ी डिसाइड करोगे, वो तो मेरी पर्सनल चॉइस है। एटलीस्ट दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस। यहाँ तक तो मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है ना। अगर मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस है ऐसी जो दूसरी लैंग्वेज समझ सकती है, या फिर मुझे अच्छा फील होता है उसमें, सो इट इज़ माई ओन चॉइस। It does not make me English, it does not make me alien, or it does not make me other by culture. My culture is my Indianness. But knowing the language, knowing many languages is an additional advantage a person can have. तो बहुत सारे जो politicians हुए हैं उनको बहुत सारी languages आती थी,
तो जिसको जितनी लैंग्वेजेस आती हैं वो उतना ही वर्सेटाइल पर्सन हो जाता है, उसकी रीच उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो नोइंग लैंग्वेज इज़ एन एडिशनल एडवांटेज यू कैन हैव इन योर लाइफ। सो व्हाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स। ये वही 4 लोग हैं। आपको उसमें फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे जो झूठे दोस्त होते हैं, आपको उसमें क्रिटिक्स भी मिल जाएंगे, मतलब आपको हमेशा हर कोई अप्रिशिएट ही करे, आपको लाइक ही करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी इवन दो यू डू वेरी मीन्स पायस डीड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी कर रहे हो, बढ़िया काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सारे लोग पसंद ही करेंगे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी कर रहे होते हो, सो यू कैन फाइंड सर्टन पीपल हु ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, उनको आप में हमेशा गलती ही, कमी ही दिखती है, तो वो आपके सामने हमेशा रहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट हमेशा रहते हैं। तो कोई बात नहीं। तो भैया क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, ये रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों ने एक अलग ही नरक मचाया हुआ होता है लाइफ में। तो रिश्तेदारों को भी परेशानी है कि लो उनकी लड़की तो मलयालम नहीं बोलती, उनकी लड़की तो लो जी है इंग्लिश बोल रही है, इंग्लिश सीख रही है। इंग्लिश तो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज थी, अंग्रेज़ों ने तो हमें 200 साल टॉर्चर किया था, ये तो इंग्लिश बन गई, हमारी इंडियननेस भूल चुकी है, कल्चर भूल चुकी है, ये वो। अरे भाई इतना ज़्यादा क्यों उसको इंटरप्रेट कर दिया आपने, पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ दिया? ये एक पर्सनल चॉइस भी तो हो सकती है एवरी वन ऑफ यू कि भैया मुझे क्यों छोड़ नहीं देते तुम। यू माइंड योर ओन बिजनेस, लेट मी डू माइन, लेट मी माइंड, यू माइंड योर ओन बिजनेस। प्लीज फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन। Why not let me speak in any language like, ये यहाँ पर भी एंजॉयमेंट है, यहाँ पर भी एंजॉयमेंट, यहाँ पर भी एंजॉयमेंट, यहाँ पे भी रन ऑनलाइन, तीनों लाइन्स में रन ऑनलाइन, यहाँ पर भी इनफैक्ट। तो वाई, ये आपको लाइन कहाँ तक पढ़नी है? वाई नॉट लीव मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। भाई जो जिस लैंग्वेज में मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है तो करने दो मुझे। वाई आर यू डिक्टेटिंग टर्म्स फॉर मी? No, please. The language I speak becomes mine, its distortions, its queerness, all mine, my alone. लैंग्वेज का एक नेचर होता है कि यूज़ करने वाला उसको ऑल्टर करता है और लैंग्वेज यूज़ करने वाले को ऑल्टर करती है। यूसेज ऑल्टर्स द यूज़र एंड यूज़र ऑल्टर्स द लैंग्वेज ऑल्सो। ये होता है। कुछ आपने राइटर्स को सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ किया कि वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। जितने भी आपको वैरायटी मिलती है इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस में लैंग्वेज की, वो सारे लिटरेचर की देन है। लिटरेचर में उस राइटर ने उस लैंग्वेज को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। आज तक किसी ने शायद उस लैंग्वेज को इस तरह से यूज़ नहीं किया। वो फिर एक्सेप्टेड फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। लैंग्वेज की जितनी पॉसिबिलिटीज़ राइटर्स ने आपके सामने प्रेजेंट कर दी हैं उतनी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अदरवाइज़ लैंग्वेज तो फिर बड़ी बोरिंग हो जाएगी। अगर लैंग्वेज को राइटर्स यूज़ ना करें या लैंग्वेज को मॉडिफाई ना करें या उसमें पॉसिबिलिटीज़ ना क्रिएट करें राइटर्स, पोएट्स, तो लैंग्वेज तो बड़ी नीरेस्ट टाइप की हो जाएगी, बड़ी बोरिंग हो जाएगी। फॉर्मल एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज बोरिंग। तो यहाँ पे वो कह रहे कि भाई जैसी भी आती है वो मैं, आई नो इट्स माइन। आपको समझ में नहीं आती तो आप मत सुनिए मुझे, आपको अच्छी नहीं लगती तो मत पढ़िए मुझे। मैं आपको थोड़ी मजबूर कर रही हूँ। ये मुझे पसंद है, बस इतना रीज़न काफ़ी है मेरा इसको यूज़ करने के लिए। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लिसन टू मी, रीड माई पोम्स, रीड माई राइटअप्स। तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई हु इज़ कंपेलिंग यू। सो द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट बिकम्स माइन। ये मीडियम है एक्सप्रेशन। ये ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे की लैंग्वेज बनूंगी तो मैं दूसरी बन जाऊंगी। इफ़ आई यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज सो आई विल बिकम इंग्लिश, ये एक मिसकंसेप्शन हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और अपनी रूट्स को इंटैक्ट रखना ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। सर्टन पीपल डू दैट। ऐसा नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलते ही आप अंग्रेज हो जाओगे। यू कैन नॉट बिकम एन इंग्लिश मैन ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ योर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स अ मीडियम, सिंपली अ मीडियम। उसको मीडियम तक रहने दीजिए, उसको पॉलिटिसाइज मत करिए जैसे कि आप मेरे केस में कर रहे हो। इट्स ए डिस्टॉर्शंस मतलब क्या है कि जो जिस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया, अच्छा किया, बुरा किया, ग्रामेटिकली करेक्ट किया, नहीं किया, वो सब मेरे साथ है।
इवेल्युएट करते हो, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि भाई यू आर नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज द वे इट शुड बी स्पोकन, और योर एक्सेंट इज नॉट एट पार, और योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट एट पार, और दिस और दैट। तो वो हो सकता है कि तो उसको आप इवेल्युएट करके मेरे साथ अटैच कर सकते हो कि योर लैंग्वेज इज द यूसेज ऑफ दिस लैंग्वेज इन योर हैंड इज नॉट एट पार। वो आप करना चाहो तो कर दीजिए, लेकिन आई नो दैट आई हैव अडॉप्टेड दिस लैंग्वेज एंड आई फील लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इन दैट। इट्स क्वेयरनेस, ऑल माइन अलोन, मेरी खुद की हैं। I don't impose anything upon you. I don't say anybody that you also should start speaking or writing in English. It's a half English, half Indian, funny perhaps, but it's honest. It is as human as I am human. Don't you see? अब इस इंग्लिश को अगर आप इवेल्युएट करोगे तो यू विल कम टू नो दैट इट इज़ हाफ इंडियनाइजेशन। मतलब जिस तरीके से हमने इंग्लिश लैंग्वेज का इंडियनाइजेशन कर दिया है। अब आपको जब गूगल में आप देखते हो या फिर आप सर्टेन सॉफ्टवेयर्स की बात करते हो जो स्पीच को लेकर के हैं, तो वहाँ पे आपको इंडियन इंग्लिश भी एक ऑप्शन की तरह दिखाई देती है। अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश। तो ये क्यों है? अल्टीमेटली दिस इज़ इंग्लिश, लेकिन फिर भी वेरिएशंस आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोगों ने उस लैंग्वेज को यूज़ किया है, दे हैव ऑल्टर्ड दिस लैंग्वेज टू सर्टेन एक्सटेंट। और वो अगर सही किया है तो वो उनके नाम से या उनकी जगह से वो पहचानी जा रही है। द वे इंडियंस हैव यूज्ड दिस लैंग्वेज, दे हैव क्रिएटेड और दे हैव ऑल्टर्ड द यूसेज ऑफ दिस लैंग्वेज टू सर्टेन एक्सटेंट, और उसी की वजह से फिर वो इंडियन इंग्लिश की तरह आपको समझ में आती है, फिर आपके सामने आती है। तो हाफ इंडियन मतलब इंडियनाइजेशन। टू सर्टेन एक्सटेंट आई हैव इंडियनाइज्ड दिस एक्सप्रेशन। फनी परहैप्स, हो सकता है कि द वे आई स्पीक, जो मेरा लोकल एक्सेंट है या लोकल थ्रोइंग ऑफ वर्ड्स, थ्रोइंग ऑफ साउंड्स, अब हर लैंग्वेज की जो एक्सेंट या उनके वर्ड्स का यूसेज, साउंड्स के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं। हर लैंग्वेज एक ही तरीके से थ्रो की जाएगी माउथ से, हर एक ही तरीके से प्रोनाउंस की जाएगी, ये ज़रूरी नहीं होता। तो वो आर्टिकुलेशन ऑफ दैट साउंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, फ्रॉम यूजर्स टू यूजर्स। तो वो अगर इंडियन, क्योंकि वो एक्सेंट मेरा इंडियन रहेगा, जो साउंड से जिसकी प्रैक्टिस है हमें लोकल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, वही साउंड के हम अकॉर्डिंग ही उसको इंग्लिश लैंग्वेज को भी थ्रो करेंगे। तो वहाँ पे हो सकता है कि जो नेटिव स्पीकर्स की तरह वो ना आए, साउंड ना आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करेक्ट नहीं है, करेक्ट है। एज लॉन्ग एज इट्स करेक्ट, you are able to understand me even though I fail to develop or create the accent a British speaker, native speaker does। तो हम नेटिव स्पीकर की तरह तो हमें बोलना ही नहीं, यूज ही नहीं करना। क्यों? नेटिव स्पीकर की तरह हम कर भी नहीं पाएंगे, और करना भी क्यों है। लैंग्वेज मीडियम हमने अडॉप्ट किया है, ना कि हमने उनका वे। बट इट इज ऑनेस्ट, इट इज एज ह्यूमन एज मी। ह्यूमन मतलब क्या है कि जो बिल्कुल इंस्टिंक्टिव है, मेरे लिए इंस्टिंक्टिव है, मेरे लिए अंदर से आती है, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन मेरा इसमें है, तो वो काफ़ी है मेरे लिए। इट्स ऑल सफिशिएंट फॉर मी। डोंट यू सी? अरे कि भाई तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? डोंट यू रियलाइज दिस? इट्स मीडियम ओनली, मीडियम ही रहने दो इसको। इट वॉइसेज माई जॉयज, माई लॉन्गिंग, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काउइंग इज टू क्रोज और रोरिंग टू द लाइन्स। अब यहाँ पे दो तरह की बात आपको समझ में आएंगी। एक तो पहली बात तो यही है कि भाई ये दिस लैंग्वेज एक्सप्रेसेस मी, माई जॉयज, माई सोरोज, माई इमोशंस, इमोशनल वैगरीज, जितनी भी तरह के वेरिएशंस हैं, इमोशनल टर्बुलेशंस हैं, वो सब एक्सप्रेस किए जाते हैं इस लैंग्वेज में। आई फील कंफर्टेबल व्हेन आई स्पीक, व्हेन आई हीव, व्हेन आई ब्रीद। तो जो लैंग्वेज का जो यूसेज है मेरा, उसमें वो बड़ा ऑनेस्ट है मेरे लिए, और मेरे लिए ऐसे नेचुरल है जैसे कि काउइंग टू क्रोज। अब ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं। लोगों के लिए हो सकता है कि मैं इंग्लिश अगर बोल रही हूँ तो कि भी क्या कौवे की तरह काँव काँव कर रहे हैं, मतलब वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड वी लेबल, वी कंपेयर योर लैंग्वेज
द काउइंग ऑफ क्रोज, कौवे की तरह काँव काँव करना, मतलब व्हेन वी, जो कैकोफोनी, तो कैकोफोनी की तरह लग सकती है आपको मेरी लैंग्वेज, लेकिन मेरे लिए क्या है, इट इज रोरिंग टू द लाइन्स, आई फील कंफर्टेबल एंड इट स्ट्रांगली वॉइसेज माई एक्सप्रेशन, इट स्ट्रांगली एक्सप्रेसेज मी एज स्ट्रांगली एज अ रोर, और जैसे रोर उसकी आइडेंटिटी होती है ऐसे ही ये मेरी आइडेंटिटी है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज इज़ माई आइडेंटिटी। व्हेन आई स्पीक इंग्लिश सो आई एम डूइंग जस्टिस टू माई ओन आइडेंटिटी। तो उसमें तुम कौन होते हो भाई? तो ये उतनी नेचुरल है मेरे लिए, यूजफुल है जैसे कि काउइंग इज़ टू क्रोज एंड रोरिंग इज़ टू लाइन्स। तो लायन के लिए जैसे उसकी आइडेंटिटी है या फिर उसकी यूज़फुलनेस है, यूज़फुलनेस भी आप कह सकते हो, क्योंकि अगर लायन रोर ना करे तो उसको कोई लायन समझे ही ना। अगर लायन काउइंग करने लगे तो फिर कौन उसको लायन समझेगा, कौन उसको जंगल का राजा समझेगा, कौन उससे डरेगा? तो वो यूज़फुलनेस है, लैंग्वेज हर किसी की यूज़फुलनेस है। इसीलिए एक्सप्रेशन, किसी भी तरह की जो साउंड आप अटर करते हो तो वो आपकी यूज़फुलनेस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ना कि कोई और पॉलिटिक्स है उसमें। इट इज़ ह्यूमन स्पीच। ह्यूमन स्पीच मतलब क्या है कि सम वन एक्सप्रेसेस द अदर अंडरस्टैंड्स। मैं अपनी बात, मतलब इन ऑर्डर टू लेट मी रिमेन अ ह्यूमन, टू लेट मी कम्युनिकेट, तो उसके लिए एक ही मीडियम है मेरे लिए। इट इज़ अ ह्यूमन स्पीच। ह्यूमन स्पीच ही एक, मतलब बाकी सारे जानवरों में एक स्पीच का ही ऑर्गन जो है वो नहीं होता जिससे कि वो अपने आप को दूसरों को अंडरस्टैंड करा पाते हैं। ह्यूमन बीइंग के पास एक वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि वो लैंग्वेज के थ्रू वर्ड्स ही कैन मेक हिमसेल्फ अंडरस्टूड टू अदर पर्सन। तो वो ह्यूमन स्पीच है। इसलिए द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हेयर एंड नॉट देयर, दैट इज हेयर एंड नॉट देयर। नॉट देयर मतलब क्या है कि वो लैंग्वेज यूजर टू यूजर वेरी कर सकती है, लेकिन ये एक नेचुरल एक्सप्रेशन है, इसमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है, दैट्स इट। तो ये मेरा एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है, हु यू आर टू डिक्टेट द टर्म्स फॉर मी पर्टिकुलरली फॉर यूजिंग लैंग्वेज। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये मेरे माइंड की लैंग्वेज है। आई कंसीव इन दिस लैंग्वेज, आई फॉर्मुलेट माई थॉट्स इन दिस लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड द थॉट्स इन दिस लैंग्वेज, I assimilate myself with the people to the culture through this language। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ है, मैं क्यों इसको चेंज करूँ? आई एम नॉट चेंजिंग। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू लिसन टू मी, रीड माई पोम्स, रीड माई राइटर्स, डोंट। हु इज़ कंपेलिंग यू? Note the deaf, blind speech of trees in storm or of monsoon clouds, of the rain or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre। अब आवाज़ें तो और भी होती हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि वो अगर चल भी, आवाज़ आ भी रही है लेकिन nobody is understanding them, just like the trees। When it is a stormy condition, the trees also make some sound, जो hissing sound है, साए साए की तरह वो हवा से पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। So the trees are also making some sound। Perhaps the sound is of that turbulence, of that disturbance that they are facing। They are not feeling comfortable। तो वो उनकी एक हो सकता है कि अपने अंदर का दर्द एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन उस साउंड को वो सामने वाला स्टॉर्म समझ नहीं पा रहा है, सुन ही नहीं पा रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट ह्यूमन स्पीच। ह्यूमन स्पीच के एक ही एडवांटेज है कि इफ़ आई से समथिंग, सो वो सामने वाला जो है वो उसको सुनता है, समझता है। समझ कर रिएक्ट करे ना करे वो उसकी अपनी एक चॉइस है, एटलीस्ट वो सुन तो लेता है, समझ भी जाता है। वो उस तरह से डेफ नहीं है। जैसे कि स्टॉर्म के लिए वो ट्रीज कितना भी साए साए करे आवाज़ निकालें, चाहे वो आवाज़ उनकी अंदर की एक डिस्कम्फर्ट को एक्सप्रेस करती है, लेकिन स्टॉर्म इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस लैंग्वेज, दिस पर्टिकुलर साउंड दैट द ट्रीज अटर। ऐसे ही, और मॉनसून ब्लाइंड स्पीच, डेफ स्पीच, मतलब हम ऐसा भी नहीं है कि सुन करके देख करके अनदेखा करें, ह्यूमन स्पीच है। और ये स्पीच ही हमें क्या बनाती है? ह्यूमन बनाती है। व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल बाय द वे ही और शी स्पीक्स टू अस। तो जैसे बारिश के मौसम में देर आर
मीन्स थंडर एंड लाइटनिंग, द गड़गड़ाहट है और सब कुछ है, उस आवाज़ को कोई सुन नहीं पा रहा है। जो एजेंट है उस रेन का, वो एजेंट सुन नहीं पा रहा है, तो वो डेफ, वो आवाज़ एक ऐसी है जिसका कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये ह्यूमन स्पीच ऑन द अदर हैंड मेक्स एन इम्पैक्ट, क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, सुन के समझ भी रहे होगे, भले ही उसके बाद में रिएक्ट आप करो, रिस्पॉन्ड करो या ना करो, वो एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। कई बार क्या होता है, आप समझ जाते हो, बस रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं करते। या वो फ्यूनरल पायर, वो जो क्रैकलिंग साउंड है, जो चिता जलने की जो क्रैकलिंग साउंड है, वो कुछ कहना चाह रही होती है, लेकिन सिंस इट कैन नॉट मेक इट सेल्फ कंप्लीटली ऑडिबल टू, मीन्स ऑडिबल का सेंस क्या है कि अंडरस्टूड, इट कैन नॉट मेक इट सेल्फ कंप्लीटली अंडरस्टूड कॉम्प्रीहेंडेड बाय द पीपल। लोगों को क्या, उनके लिए सिर्फ क्या है कि इट्स अ साउंड ऑफ क्रैकलिंग, साउंड ऑफ द बर्निंग सिंडर्स, जो कोयला शोले जलने की जो चुटपुट आवाज़ होती है, वो, उसके अलावा कुछ नहीं। थंडरिंग आवाज़ है, साई आवाज़ है, लेकिन वो कुछ कहना जो चाह रही होती है वो कोई समझता नहीं, ना वो एजेंट समझता है जो क्रिएट कर रहा है, ना ही जिसको अपील कर रही है वो समझती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ह्यूमन स्पीच जब भी एक्सप्रेस की जाती है तो उसको समझा जाता है। तो ये एक ह्यूमन स्पीच है। ये जो ह्यूमन स्पीच है सब्सटेंशियल है, इसका एक अपना मीनिंग है, अपनी एक आइडेंटिटी है, और ये दूसरों को अपनी बात एक्सप्रेस करने और समझाने के लिए केपेबल है। आई वॉज अ चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू। अब यहाँ से लैंग्वेज की बात खत्म हुई, अब यहाँ से आई कल्चरल डोमिनेंस। यहाँ से आप पूरी जो फेमिनिज्म थियोरी है, पर्टिकुलरली परफॉर्मेटिविटी, रोल प्लेइंग, इंटरपेलेशन, ये सब आपको यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब वीमेन आर गिवन सर्टेन रोल्स विच दे टेंड टू हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स विद, they have to adopt those roles in the society in order to become a woman. Otherwise they will not be accepted as such. They will be accepted only when they adopt themselves to certain norms, they fit in the norms, they adopt the roles that have been formulated, laid down by the social structure. जो पूरी सोशल फैब्रिक है, स्ट्रक्चर है, वो जो उनके लिए रोल्स पहले से ही रूल्स और कन्वेंशंस और रोल्स प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं, अगर उनके साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करती, फिट अपने आप को नहीं करती उसमें, सो दे आर लेबल्ड टू बी फसी, दे आर लेबल्ड टू बी रिबेलियन, दे आर नॉट एक्सेप्टेड, दे आर लेबल्ड एलियन। उनके लिए सोसाइटी में शायद वो जगह क्रिएट फिर नहीं की जाती। तो वहाँ से फिर आपको ये है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे पता कब चला कि मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जब सोसाइटी वालों ने वो उस फिजिकल चेंजेस के साथ कुछ सर्टेन डूज एंड डोंट्स मेरे ऊपर थोपना शुरू कर दिए। देन आई रियलाइज दैट आई वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम अ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। वो फिजिकल चेंजेस होने के साथ साथ सोशल कन्वेंशंस का बोझ भी मेरे ऊपर लाद दिया गया। तब मुझे एहसास हुआ दैट आई वॉज बिकमिंग अ वुमन, आई वॉज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वुमन, एंड बीइंग अ वुमन इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल आइडिया। जो इनको एहसास स्टार्टिंग में हुआ कि बीइंग अ वुमन इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल आइडिया इन अ सोसाइटी वेयर यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ विद सो मैनी रूल्स एंड कन्वेंशंस। मैन के लिए शायद वो उतने कन्वेंशंस नहीं है जितने कि वीमेन के लिए हैं। उनको हर मोड़ पर, हर स्टेप पर एक न एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डोमेस्टिक, हर किसी न किसी तरह की कन्वेंशन से गुजरना होता है और उसको एडॉप्ट करना होता है। रूल से गुजरना होता है, उसको एडॉप्ट करना होता है, रोल प्ले करने होते हैं, रोल एडॉप्ट करने होते हैं। तो वो जब एहसास हुआ कि यार बिकमिंग अ वुमन इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल कंड्यूसिव आइडिया टू सर्वाइव इन द सोसाइटी विच इज बायस्ड इन इट्स लेइंग डाउन द रूल्स, प्रिस्क्राइबिंग रोल्स। वो तो एक बड़ी बायस्ड सोसाइटी की तरफ हम जा रहे हैं। आई वॉज अ चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू। वही चार लोग, सोसाइटी ने बताया कि अब तुम बड़ी हो रही हो,
अब ये आपने खूब देखा होगा, छोटे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो इससे पहले कि वो खुद एहसास करें कि दैट दे आर ग्रोइंग, जो ग्रोन अप पीपल होते हैं उनके सराउंडिंग में, पेरेंट्स से लेकर के उनके सब, वो सब बात पे एहसास कराए जाते हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हारे रोल्स ये हैं, अब तुम्हारी ड्यूटीज़ ये हैं, अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें वो करना है, अब ऐसी ड्रेस पहननी है, अब ऐसे लैंग्वेज बोलनी है, अब ऐसी चाल चलनी है, और ऐसे अब आपकी आवाज़ की मॉड्यूलेशन ऐसी होनी है, आवाज़ की पिच इतनी होनी है, ये होना है, वो होना है। मतलब हर तरह की बात, आपके बोलने से लेकर के चलने तक, ड्रेस सेंस से लेकर खाने तक, पीने तक, एवरीथिंग इज डिक्टेटेड फॉर यू। इवन आपके कलर, चॉइसेस ऑफ कलर, वो उससे भी आपकी आइडेंटिटी होगी, चॉइसेस ऑफ आपकी ड्रेस, उससे भी आपकी आइडेंटिटी होगी। सब चीज़ें आपके लिए पहले से ही तैयार कर दी जाएंगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है। तो आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज इनोसेंट। चाइल्ड से आप इनोसेंस की बात, आई वॉज इनोसेंट, आई वॉज unconscious. I was not very conscious of the growing changes, growing transformation in me. I was a child and later they told me I grew. For I became tall and my limbs swelled and one or two places sprouted hair. One or two places मतलब the hair, pubic hair, वो एक physical changes मतलब mark होता है that you are growing from childhood to adulthood, adolescence। तो ये आपसे पहले आपने नोटिस नहीं की, लेकिन सोसाइटी वालों ने नोटिस करके और आपको एहसास कराना शुरू कर दिया कि अब बड़े हो गए हो तुम, अब तुम बड़ी हो गई हो, और नाउ यू शुड बिहेव इन दिस पर्टिकुलर वेज। आपको अब ऐसा पहनना है, अब ऐसा बोलना है, अब ऐसा चलना है, अब ऐसा कहना है, अब ऐसा खाना है, ऐसा पीना है। सारी चीज़ आपके लिए धीरे धीरे फॉर्मुलेट कर दी जाएंगी। When asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. यहाँ पर seeking love and finding what? Becoming conscious of your body, becoming conscious of your bodily needs। जो एक इमोशनल चेंजेस आते हैं, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आता है एडोलसेंस में, एक जो एडल्टहुड में, अर्ली टीन्स में, तो वो एक लॉन्गिंग फॉर लव, लॉन्गिंग फॉर एग्जिस्टेंस, वो एक नीड की तरह आपके सामने होता है उस एज में, पर्टिकुलर एज में। अब जो वो चेंजेस आते हैं और उसके बाद में बीइंग अ वुमन व्हेन यू सीक लव एंड यू फाइंड समथिंग एल्स, वो आपके सामने एक सरप्राइजेस की तरह होते हैं। You are perhaps you are not prepared for that. When she was in her early teens or late adolescent, she started pining for love. She started feeling for love, love of other person. So चाहे वो physical needs हो सकती हैं, चाहे वो love, spiritual love हो सकता है, anything। When I asked for love, not knowing what else to ask, it was simply a very innocent idea of seeking love. अब इसके माइंड में कुछ ऐसा था नहीं, जो मैनिपुलेटिव वेज होते हैं लाइफ के, किस तरीके से चीट करना, धोखा देना, ये वो, उस तरह का। मतलब शी डिड नॉट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, शी वॉज लीस्ट मैनिपुलेटिव एंड आउट ऑफ दैट इनोसेंस शी सिंपली फेल इन लव विद सम पर्सन एंड देन शी सॉट लव। तो लव के लिए, एंड वॉट शी गॉट, what she find out, what turned out to be, that was a kind of nightmare for her early experiences। वो बड़े ही adverse तरह के experiences हुए इसके। For he drew a youth of 16 into a bedroom। He drew, मतलब she fell in love with a boy of perhaps 16, and then she asked for love, and for boy the love was physical love। Boy drew her into the bedroom and then they made love. She felt it to be the spiritual love, but the boy was making love as a physical love. So for the boy it was a physical love, she wanted some spiritual love। अब वो जब एहसास हुआ, when she realized this, कि what I wanted and what I got, जो love making, what it had, what this love making, this union of the bodies had, whether it had some spirituality, whether it had the innocence that I wanted, or it was simply a lustful act. The way he handled me did not suggest that he loved me, he loved my body। तो वो एहसास जब हुआ कि it was the body that the person loved, I was mistaken,
ये तो मेरी गलती थी, मैंने ये सोचा कि ही लव्ड मी एज अ बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, बट व्हाट ही लव्ड वाज माय बॉडी, and that is the disadvantage of a female body. He drew a youth of 16 into a bedroom and closed the door, and he did not beat me. हालांकि it was not a kind of beating, domestic violence type. It was not a beating, physical violence. It was not a physical violence. It was not the love itself. ये physical beating अगर नहीं थी तो it was also not love. The piousness of love was not there in this act. The innocence of love was not there in this act. The delicacy of love was also not there in this act. What it had, it was simply gratification of the senses. It was the satisfaction of the bodily needs. I could not understand that, but the boy was manipulative, and then he knew it quite well, and then he exploited my body. I asked for love, but he instead exploited my body. Closed the door, he did not beat me, but my sad woman body. It means the woman body is vulnerable to all such kind of atrocities. एक ये woman होना जितना special है उतना ही it is exposed to, it is vulnerable to the pain also. जो pain आपको emotional pain लोगों की नज़रों से जो दिखता है, या लोगों की जिस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं वो आपको, जिस तरीके से आपके अंदर उनको एक ह्यूमन बॉडी नज़र आती है, ह्यूमन बीइंग नज़र नहीं आता, वो फीमेल बॉडी की डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पे उसको पहली बार एहसास हुआ कि जो ह्यूमन बॉडी, पर्टिकुलरली वुमन बॉडी की डिसएडवांटेजेस क्या थी। शी pined for love, but lust she got. The boy drew close to her, but it was not the pious feelings, it was the lustful act. So एक फिजिकल बीटिंग नहीं थी, लेकिन इसकी जो वुमन बॉडी ने इमोशनल ट्रॉमा जो फील किया वो इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटन मतलब यहाँ पे कैसे, इमोशनली डिवॉइड। दिस वॉज कंप्लीटली एन इमोशनली डिवॉइड एक्ट। ये जो लव मेकिंग थी द बॉय ऑफ 16 एंड हर्स, ये कैसी थी, इट डिड नॉट हैव द सेंटिमेंट्स ऑफ लव, इट डिड नॉट हैव द डेलिकेसी ऑफ लव, इट हैड लस्ट। तो उसकी बाद में उसको एहसास होता है कि यार आई पाइंड फॉर लव एंड व्हाट आई गॉट वाज सरप्राइज। Perhaps this is the ways of the people. You as a woman are exposed to this kind of treatment by men. For most of the men, it is your body that they love rather than your soul. It is your body that is understood to them, not you yourself. ये क्या है, ये disadvantages हैं ह्यूमन पर्टिकुलरली वुमन बॉडी की। तो वो उसको सबसे पहले एहसास हुआ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो ये थी। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट्स एंड द वूम क्रश्ड मी। अब ये मतलब शी रियलाइज द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ वुमन, हैविंग अ वुमन बॉडी। तो पहले उसको एहसास ये था ही नहीं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिक, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट्स एंड द एबिलिटी ऑफ कंसेप्शन, ये जो वुमन एट्रीब्यूट्स, ये किसी भी तरीके से डिसएडवांटेज हो सकते हैं उसके लिए। इट वॉज, शी वॉज नोविस, शी वॉज इनोसेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जब जो ट्रीटमेंट मिला इनको, वो ट्रीटमेंट ये एहसास करा दिया कि दिस इज ऑल्सो द वल्नरेबल, मीन्स वुमन बॉडी इज वल्नरेबल टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बाय मेन। जो पहला एक शॉकिंग जो ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस था वो इनके लिए। शी डिड नॉट फील लाइक बिकमिंग अ वुमन। यू डोंट गेट व्हाट यू पाइन फॉर, यू पाइन फॉर लव एंड देन यू फाइंड ओनली लस्ट इन मैन। The person that you fall in love with sees your body, not your soul, touches your body, not your soul, loves your body, not you. ये पहली बार एहसास हुआ तो उनको फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्स की तरफ फील हुआ। जो वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, हिटिंग प्यूबर्टी, स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट और चेंजेस इन एंटायर बॉडी, वो पहले एक जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे थे, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे थे, लेकिन अब कैसा लग रहा है कि वो एक कर्स है, कर्स टू अ ह्यूमन फीमेल बॉडी।
I shrank pitifully. She felt very confined. अभी तक इतना confined, इतना limited फील नहीं किया. अब लिमिटेड किस तरीके से कि दिस इज ऑल वी आर फॉर, मीन्स इट इज ओनली आवर बॉडी दैट विल बी अंडरस्टूड बाय द पीपल, इट इज आवर बॉडी दैट विल बी लव्ड बाय द पीपल, इट इज द बॉडी दैट विल बी स्टेयर्ड बाय द पीपल, इट इज द बॉडी दैट विल बी कंसिडर्ड बाय द पीपल, दिस इज द एक्ट ऑफ प्रोक्रिएशन दैट विल बी कंसिडर्ड बाय द पीपल, वी वुड बी सिंपली डोमेस्टिकेटेड, चाइल्ड बियरिंग, बस यही एक हमारा है. मतलब ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैपेबिलिटीज वी वुड बी आइडेंटिफाइड एज ए वुमन. तो ये तो मतलब लिमिट हो गया, आपकी जो पोटेंशियल, आपकी जो एग्जिस्टेंस, सबको आपको लिमिट कर दिया. वुमन बॉडी ने वुमन एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली लिमिट कर दिया. तो शी डिड नॉट फील सो लिमिटेड एज शी इज फीलिंग राइट नाउ. उसके बाद में जितना इसको लिमिटेड आज तक फील नहीं हुआ अपने आप को लेकर के, वो आज हुआ. कि इसका मतलब तो क्या है कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज अदर देन दीज थिंग्स. ये तो कुछ बात नहीं हुई. नाउ इट वॉज अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू श्रेड दिस एग्जिस्टेंस ऑफ अ वुमन विच वी कैन नॉट. However she tried. Then I wore a shirt and my brother's trousers, cut my hair short and ignored my womanliness. जो वुमनलीनेस, जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया टीनेज में या अर्ली टीन्स में, और जो डिसएडवांटेज दैट शी फेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ वुमन व्हेन द पर्सन, द ऑपोजिट सेक्स, द मैन सीज योर बॉडी ओनली एंड देन नॉट योर सोल. वो जो डिसएडवांटेज थी और वो एक लिमिट करना, किसी के एग्जिस्टेंस को उसकी बॉडी के, उसके जेंडर के आधार पे इसको लिमिट कर देना, वो जो वुमनलीनेस थी उसको इग्नोर करने के लिए शी ट्राइड टू बी अ मैन बाय वेयरिंग मेंस ड्रेस, बाय कटिंग हर हेयर शॉर्ट. एक एजम्पशन थी उसकी कि शायद ऐसा करने से वो जो लोगों का टेम्परामेंट है वुमन के लिए, लोगों का अप्रोच है वुमन के लिए, पर्सपेक्टिव है, वो शायद चेंज हो जाए. However it was not so. अब रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोसाइटी के, जो सोशल फैब्रिक है उसको मेंटेन करने के लिए. अ वुमन हैज़ टू लुक अ वुमन, अ मैन हैज़ टू लुक अ मैन हैज़ टू डू ऑल द सॉर्ट्स ऑफ वर्क्स दैट आर डिजाइंड फॉर हिम. A woman has to do all sorts of works that are prescribed, laid down by the normative patriarchal society. यहाँ पर भी लोगों को, वो जो 4 लोग थे उनको फिर भी मज़ा नहीं आया. Now they started exhorting something. और फिर दोबारा से उन्होंने उसको पूरा जजमेंट दे दिया उसकी पर्सनैलिटी पे, और उससे वो सारी एक्सपेक्ट करने लगे जो टिपिकल रोल्स हैं वुमन के लिए एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए. ड्रेस इन साड़ीज मीन्स अ वुमन हु डज नॉट वेयर अ साड़ी इज नॉट अ वुमन. मीन्स वुमन्स एग्जिस्टेंस इज लिमिटेड टू द ड्रेस ओनली. ये कल्चरल जो चेंजेस हैं, कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें आपने क्या किया, वुमन के एग्जिस्टेंस को, कुछ कल्चर्स हैं, फूड कल्चर, ड्रेस कल्चर, कुछ रिचुअल्स, कुछ ड्यूटीज़, उन सब से आपको एक एसोसिएट कर दिया. एंड देन योर एग्जिस्टेंस हैज़ बीन लिमिटेड टू दोज रोल्स ओनली. एंड इफ़ यू प्ले दोज रोल्स वेल, you are expected, you are accepted, you are worshipped, you are adored. If you fail to discharge your duties which have been prescribed for you, so certainly there is no place or there is hardly any place for you in the same society. वो एक जो biases हैं, वो cultural biases हैं, वो यहाँ पे. Dress in sari, be a girl, be wife, they said. Be a girl means you accept that you are a woman, you accept that you are a girl. Your existence lies in your being a girl. Being a girl means you are expected to perform certain duties which are given, prescribed for a woman, a girl. वही आपको करनी है, otherwise your existence would not be considered. You will not be accepted in the society. तो be a girl, be a wife. मतलब एक perfect जो मैट्रिमोनियल मटेरियल एक सर्टेन एज के बाद में कहाँ से उसका पूरा एग्जिस्टेंस लिमिट कर देते हैं. when she has to become a wife, there were certain duties when she was a girl, she was a daughter, and when she becomes a wife, so there are certain whole new range of duties that are expected from her in order to survive in the society, in order to exist in the society. To be a wife,
मतलब योर ड्यूटी लाइज इन बीइंग अ वाइफ. इफ यू डोंट बिकम अ वाइफ, you don't perform this function of leading the family, not leading the family, of forming the family. Childbearing, by childbearing you are expected to bear the child, so you are expected to perform all the womanly duties as a wife. So be a girl, be a wife, they said. Be embroiderer, be cook, be quarreler with the servants. Typical homely wife कि भाई वो करो. These works suit your existence. क्या करो? एम्ब्रॉयडरी करो. मतलब ये ट्रेडिशनली जो स्टार्टिंग में पहले कहा था कि भाई दे आर नॉट गिवन सो मच एक्सपोजर इन पॉलिटिकल फील्ड्स, इन पॉलिटिक्स. All they have is a slight knowledge of who is the prime minister or who is the bigger leader of the time. उसके अगेंस्ट, उसके अलावा शायद इनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे कि वो अपने आप को पॉलिटिक्स में स्टैंड करा सकते हैं. there is no such kind of exposure and opportunity. क्या है उनके लिए? Be a wife, be a girl, perform the duties which are given to you, which are prescribed for you. Be an embroiderer. ये जो घरेलू डोमेस्टिक वर्क्स है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड चोर्स जो है, यही करिए. कढ़ाई बुनाई करिए, बर्तन साफ करिए, खाना बनाइए, ये करिए, वो करिए. बी अ कुक, बी अ क्वेरलर विद द सर्वेंट्स. एक टिपिकल हाउसवाइफ की हम रोल को लिमिट कर दिया है कि भाई हाउसवाइफ्स आर by the temperament a quarreler with the servants. वो किस लिए? कि by poking her nose in the affairs of those servants doing their duties, कि ये काम ढंग से नहीं हुआ, वो काम ढंग से नहीं हुआ, ये काम ढंग से करो, वो काम ढंग से करो. If she manages the servants well, so she is regarded as a well trained wife, a good wife, good household performer. Otherwise उसका फिर रोल या फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है. तो बी अ क्वेरलर विद द सर्वेंट्स, फिट इन. अल्टीमेटली दे वांट हर टू फिट इन. फिट इन मीन्स adjust yourself with the conditions given to you. Adjust yourself, your existence with the surrounding conditions for you. Fit in. If you fit in, you will be accepted. If you don't, so you may face alienation. There may not be any place for you in a society as such. The only thing that is required from you is fitting in. Oh, belong, cried the categorizers. Categorizers means जो समाज के ठेकेदार हैं, जिन्होंने कि रूल्स बना दिए गए हैं, नॉर्म्स बना दिए गए हैं, कैटेगराइज कर दिए गए हैं, रोल्स पूरे डिसाइड कर दिए गए हैं कि these are the duties performed will be performed by men and these are the duties will be performed by women. जो एक लाइनें चली आ रही है वहाँ वो चीज़. तो वो कैटेगराइजर्स जो हैं वो सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जो सॉवरेनिटी है वो इसी बेस पर चलानी है. जो उन्होंने पूरी पावर पॉलिटिक्स है वो खेलनी है, वो इसी बेस पर चलानी है. जो पेट्रियार्कल अथॉरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है. तो वो कैटेगराइज कर दिया गया है. तो वो उन लोगों ने ये कहते हैं कि बिलोंग, यू नीड टू बिलोंग. बिलोंग करने का क्या है? आपको हर चीज़ में एडजस्ट करना. जो रोल्स आपके लिए प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, यू नीड टू फिट इन दोज रोल्स एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दोज रोल्स. इफ़ यू डू दैम वेल, so you will be worshipped. Don't sit on walls or peep in through our lace draped windows. अब ये सिंबॉलिक है. विंडो का मीनिंग आप सिंबॉलिक तरीके से समझ सकते हो कि these very categorizers they have started dictating the terms for her कि भाई अरे बाहर नहीं देखना. मतलब you remain domesticized, compartmentalized. आपकी लाइफ जो है वो घर के अंदर है. द विंडोज सिंबलाइज द व्यू ऑफ द आउटसाइड, opportunities of the outside, panorama of the outside. They give wings to your imagination. They let you see the world from different perspective. So these windows are not prescribed for you. Okay, don't sit on the windows. इन विंडोज़ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज योर एग्जिस्टेंस लाइज इन बीइंग डोमेस्टिकेटेड. ये जो डोमेस्टिकेटेड वर्क्स हैं, डोमेस्टिसाइज्ड जो वर्क्स हैं, ये आपके लिए रियल एग्जिस्टेंस की बात है. बी एमी और बी कमला और बेटर बी माधवी कुट्टी. जो आपका ट्रेडिशनल नेम है, जो आपका ट्रेडिशनल आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को मेंटेन रखिए. चाहे अपने आप को एमी, ये निक नेम्स हो सकते हैं, एमी, माधवी कुट्टी और
Kamla. So these are not simply names. The whole range of culture lies in those names. जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस है उस कल्चर का, वो आपके नाम से जो रिफ्लेक्ट होता है उसको आपको मेंटेन करना है. तो यू बिकम वॉट यू आर. You belong to this place, you are born at this place, the native culture, native rituals, native language, all these things are for you, and then if you come outside these things, these boundaries, so the conditions would be very harsh for you. So be anything that is in the purview of a woman of that particular locality. Localize yourself. कहने का मतलब क्या है, अपने आप को लोकलाइज करिए. लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, लोकल रिचुअल्स, लोकल जो एक फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, जो एक फाउंडेशन है सोसाइटी की, उसमें अपने आप को एसिमुलेट करिए. दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम हर. इट इज टाइम टू चूज अ नेम, अ रोल. और अब मतलब यू ग्रोन अप, अब बड़े हो गए हो, बड़े हो गए. नाउ यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू आर. यू नीड टू डिसाइड हु यू आर. You need to decide what role is prescribed for you. You need to decide what are the duties are for women. उन सबको पहचानने की ज़रूरत है. बड़ी हो गई हो तो बड़ी होती मतलब एक गर्ल चाइल्ड के लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं जब वो बड़ी हो जाती है. बड़े होते ही जो टीनेज पार करते ही उससे सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि बिकमिंग अ वाइफ, हाउ शी कैन मैनेज इन अदर्स हाउस. उसको जाना ही जाना है. मतलब इफ़ शी डज नॉट मैरी, इफ़ यू फेल टू मैरी हर, तो वो फिर सोसाइटी में एक अलग तरीके से ही उसको देखा जाता है. तो यहाँ पर यही है, चूज़ अ नेम, अ रोल. अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस बनानी है ना. सो डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स. प्रिटेंडिंग गेम्स जैसे एक चाइल्डिश गेम्स जो होते हैं ना, बच्चों को आपने देखा होगा. सो वो इमेजिनेशन के गेम्स करते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब मैं डॉक्टर हूँ और आप पेशेंट हो, अब आप मेरे पास आओ और मैं आपका इलाज करती हूँ. इस तरह के आपने बच्चों के गेम्स बहुत सारे देखे होंगे. तो वो क्या है कि दे आर गिविंग द विंग्स टू देयर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी. वो क्रिएटिविटी की बात चल रही है यहाँ पर. वो कह रहा है कि यू लेट योर क्रिएटिविटी रिमेन आउटसाइड. कीप योर क्रिएटिविटी आउटसाइड, अपार्ट, असाइड. उसकी कोई जगह ही नहीं है. प्रिटेंडिंग गेम्स में, अब प्रिटेंडिंग गेम्स में क्रिएटिविटी आएगी. प्रिटेंडिंग गेम्स में एक इमेजिनेशन का सेंस होगा जो कि आपको नहीं करना, बिकॉज इमेजिनेशन विल बिलाई द ड्यूटीज दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू. इमेजिनेशन, इफ यू गिव स्लाइट स्पेस टू योर इमेजिनेशन, सो सर्टेनली दिस वुड टेक द प्लेस ऑफ योर डोमेस्टिकेशन. जो डोमेस्टिसिटी है आपकी, ये डोमेस्टिक एग्जिस्टेंस है, उससे आपको थोड़ा सा दूर लेके जाएगी. वो अब दूर लेके जाएगी तो वो सोसाइटी को पसंद आएगा नहीं. तो प्रिटेंडिंग गेम्स डोंट प्ले एट स्कीजोफ्रेनिया. स्कीजोफ्रेनिया मतलब टू रिमेन इन इट्स ओन वर्ल्ड. जो स्कीजोफ्रेनिया, हालांकि वो स्कीजोफ्रेनिया एक तरह की बीमारी होती है. बीइंग अ वुमन यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी व्हाट यू आर ऑल ऑफ अ सडन. अचानक से आपको क्या हुआ कि मुझे ये फील हो रहा अंदर से, ना, देयर इज नो प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ टेम्परामेंटल ऑडिटीज़. तो वो टेम्परामेंटल ऑडिटीज़ के लिए कोई जगह है ही नहीं. यू हैव टू रिमेन लाइक द थिंग्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड इन सोसाइटी फॉर यू, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू फील फ्रॉम यू विद इन और नॉट. आपको वो करनी पड़ेंगी. सो डोंट प्ले एट स्कीजोफ्रेनिया और बी अ निम्फो. इफ अ गर्ल, अब ये मतलब है कि शी वॉन्ट्स लव इन हर लाइफ. दैट्स वाई शी गेव इन before a boy of 16 and then became a victim of the emotional trauma, जो पहले स्टार्टिंग में जो बताया था. तो अब उस तरह के जो इनके अफेयर्स होंगे, उन अफेयर्स को अगर किसी को पता चला होगा, सो शी इज लेबल्ड एज अ वुमन ऑफ अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर. Nympho is a kind of a woman who has no control over his sexual desires. So don't become a nympho. Don't act as if you don't have any control over your sexual desire. You cannot behave the way these nymphos can, because there is no place for nymphos in the society. For don't cry embarrassing loud when jilted in love. Jilted matlab rejected in love. रिजेक्टेड इन लव. और ये मतलब लव वव क्या है, व्हाट द हेल इज दिस. यू फेल इन लव एंड देन यू वर चीटेड ऑफ योर इमोशंस. यू फेल इन लव एंड देन यू वर डिसीव्ड. सो और एंड आफ्टर दैट यू आर क्राइंग आउट लाउड.
सो डोंट क्राई, डोंट बिहेव फुलिशली, और ये जो इश्क विश्क इस टाइप की चीज़ों में मत पड़ो. डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली. दिस इज एम्बैरेसमेंट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज वेरी बैड इन अ सोसाइटी. सो डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव. और ये कुछ नहीं रखा इसमें, ये तो है ही नहीं. बी अ गर्ल, बी अ वाइफ, दैट्स इट. आई मेट अ मैन. नाउ अगेन शी रिकॉल्स when she met a man. कन्फेशनल पोइट्री की बात ही ऐसी होती है, मतलब यू हैव टू कन्फेस एनीथिंग दैट यू केम अक्रॉस. जो इनके सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक जितने भी तरह के इनके एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने वो एक्सप्रेस किया हुआ है. सो अगेन शी टेल्स वन ऑफ द अदर इंस्टेंसेस. आई मेट अ मैन, लव्ड हिम. जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सब के बावजूद भी आई फेल इन लव विद अदर पर्सन ऑल्सो. इफ यू आस्क मी हु वॉज दैट पर्टिकुलर गाय, सो ही वॉज नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ द टर्म. ही वॉज एनी अदर मैन. मतलब जिस तरीके से टिपिकल मैन, जो मैन की जो क्वालिटीज होती है, ही हैड ऑल दोज क्वालिटीज जो आपको एक वुमन के पर्सपेक्टिव से जो मैन में क्वालिटीज़ दिखती हैं, या फिर आप जो सोसाइटी में मैन में क्वालिटीज़ देखते हो, वो सब क्वालिटीज़ थी उसमें. मतलब ही वॉज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेल सोसाइटी और मेल. आई मेट अ मैन, लव्ड हिम. From my own part, I had tender feelings. I had true feelings for him. Whether he had the same feelings for me, that is another thing. Perhaps he was also like the guy I met in the previous stanza, the boy of 16 who loved my body, not my soul. तो यहाँ पर भी वही केस हो सकता है. Nevertheless, knowing that all men they want body, human body, woman body, rather than woman soul. मतलब mostly in most of the cases it happens. अब ये वाला आदमी भी वही था या नहीं था, that is another thing, but from her own way she loved him. Call him not by any name. और उसको नाम देने की जरूरत नहीं है. He is a typical man, so call him any name, he will come to your mind. तो कोई भी नेम रख लीजिए, एक नाम कोई सब रख लीजिए, नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम क्या करता है, थोड़ा सा आपको सेग्रीगेट करता है. लेकिन यहाँ पे ये क्या कहना चाह रही है कि ऑल मैन आर मैन विल बी मैन. हिम नॉट बाय एनी नेम, ही इज एवरी मैन. ही रिप्रेजेंट्स द मैनकाइंड, पर्टिकुलरली मेल मैनकाइंड. ही रिप्रेजेंट्स ऑल द मैन. द काइंड ऑफ क्वालिटीज ही हैड कैन बी सीन इन एनी पर्सन. एक भीड़ में से कोई सा भी चेहरा आप सेलेक्ट कर लीजिए, यू कैन फाइंड द सेम क्वालिटीज इन that person. He is every man who wants a woman. who wants a woman. अब यहाँ पे जैसे समझ लीजिए ये क्या टारगेट करना चाह रही है. A man objectifies a woman. For a man, a woman is an object, property, which he wants to own, जो purchase. तो उस तरीके से आप समझ लीजिए क्या है वो. He is yet another man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love. अब यहाँ पे दो तरह की बात इन्होंने कह दी कि women by nature they want love and men by nature they want woman, not love. Woman body. They want to satisfy themselves. They want to gratify their senses, sexual desires. But on the other hand, woman, what she wants love, the true love. So ये जिस तरीके से he represents every man, any man who seeks love in the form of woman's body. I'm also just like I'm also a woman who seeks love, who always wants love, even though we get rejection, even though we get deception. In him, the hungry tide, the hungry haste of rivers. This is the common phenomenon in all the males, all the human, particularly men. Hungry haste of rivers. जैसे रिवर होती है उसको जल्दबाजी होती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, सो वो जिगजैग करते बड़ी तेजी से भागती चली आती है. उसी तरीके से अब रिवर के उस मूवमेंट को जो सर्ज ऑफ इमोशंस हैं, सर्ज ऑफ डिज़ायर है दैट अराइज इन मैन, उसको कंपेयर यहाँ पे किया हुआ है. मैन आर इम्पेशेंट इन लव. दे वॉन्ट फिजिकल ग्रेटिफिकेशन. दे डोंट हैव एनी
any patience for the feelings, patience for love. Means according to her, this may be or may not be the general phenomenon we are not talking about. We are not labeling man as such. This is not my personal opinions. Rather, I am simply representing her opinions about men. So according to her, men are always in a hurry to gratify themselves. So in him you can find a hungry haste of rivers. Hunger, lust, hungry haste, just like the impatience you can find in river. And in me, in a woman, in me, what you can find? Ocean's tireless waiting and waiting. Impatience, infinite patience, not impatience. Infinite patience for love, infinite patience for tender emotions, infinite patience for understanding of that emotions. We wait tirelessly मतलब without being tired. वो जो एक टायरलेस पेशेंस, इन्फिनिट पेशेंस है उस ट्रू लव की तलाश में, तो वो हमारा तो ऐसा है और मैन का दूसरे तरह का है. सो इन देम यू कैन फाइंड अ hasty, they are rather hasty in order to gratify themselves, satisfy themselves. Or in us, we are in always search of love, tender emotions, and for that sometimes we have to wait endlessly, infinite, that becomes an infinite wait. Who are you? I ask each and everyone. अब ये एक है कि भाई आप किस तरह से हो. I meet a man and then I ask which category do you belong. अब यहाँ से एक थोड़ी लाइन ब्लर हो जाएगी कि ये आई जो होगा नेक्स्ट लाइन से, आई किसके लिए है. स्टार्ट कर रही है वो एक मैन के लिए, लेकिन उस मैन से अपने आप को किस तरीके से एसोशिएट करना चाह रही है. वो एक डिज़ायर है, वो डीप डिज़ायर है अपने आप को उस मैन से एसोशिएट करने की. किस तरह से? जैसे मैन इज कैपेबल ऑफ डूइंग वट एवर ही wants, and then there are opportunities for him, there are conditions for him to accomplish whatever he desires. No limitations for that. His personality has not been limited, his role has not been limited, he is given all such kind of opportunities. तो वो उस तरह का एक एग्जिस्टेंस अपने लिए वो एक्सपेक्ट करती है. इसलिए वहाँ से शुरुआत मैन से करके और लास्ट में अपने आप को कंप्लीटली एसोशिएट कर लिया कि आई एम लाइक हिम, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद हिम. तो वो एक लाइन, ब्लरिंग लाइन है कि कब उसने मैन से शुरू करके और अपने आप को उसकी पोजीशन में एक एक्सपेक्टेशन ही सही. दिस इज वॉट आई वॉन्ट फॉर मी, फॉर वीमेन. सबके लिए मैं यही चाहती हूँ. द आंसर इज, अब ये आंसर है कि हु आर यू. तो वो आंसर कहाँ से निकल रहा है? मतलब आई मीट अ मैन एंड आई आस्क क्वेश्चन कि भाई आप किस कैटेगरी के हो. आप भी कहीं वैसे तो नहीं हो वो हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, आप भी तो वैसे नहीं हो जस्ट लाइक द बॉय ऑफ 16. आप भी क्या यू आर जस्ट लाइक ऑल द अदर मैन आई हैव मेट इन माई लाइफ और आई कम अक्रॉस. तो आंसर क्या मिला है? इट इज आई. अब यहां से आपको एक लाइन शुरुआत होगी ही से और शी तक. किस तरीके से स्टार्ट किया ही से एंड देन नाउ शी हैज स्टार्टेड एसोसिएटिंग हर सेल्फ विद दैट आइडेंटिटी. यानी कि ये सारी चीज़ें जो मैन इज फ्री टू डू फ्रीली, वो अपने अंदर चाहती है, वो अपने लिए चाहती है, वो अपने वीमेन के लिए चाहती है कि ये सारी जिस तरह के मैकेनिज्म है, सोशल मैकेनिज्म जो मैन के लिए एक तरीके से बिल्कुल फ्री है, वो सारी फ्रीडम हमें भी मिलनी चाहिए. तो वो कहाँ वहाँ से बात करते करते और कब अपने आप को उसने अपने मैन से, मतलब उस पर्टिकुलर मैन से एसोसिएट कर लिया, पता ही नहीं चला. सो इट इज़ आई anywhere and everywhere, completely omnipresent. Omnipresent मतलब you can find anything, or I am everywhere. I can do anything I like. I can be present everywhere, and I don't have any limitations as far as my potentials are concerned, or the accomplishment of those wishes I have, I can have. तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, कोई लिमिटेशंस कुछ तरह की है ही नहीं. इट इज आई एनीवेयर एंड एवरीवेयर. आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड. अब क्या है कि ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द सोर्ड इन इट्स शीथ. मिडनाइट, अनटिल मिडनाइट, रात भर, आधी रात भर, जब भी चाहो पियो, कहीं भी पियो,
यहाँ पियो वहाँ पियो, आधी रात तक पियो, पूरी रात तक पियो, तो वो है हमारा। देयर इज़ नो कन्वेंशंस अगेंस्ट इट, ना ही किसी एक जो रूल बुक है सोसाइटी की उसमें लिखा हुआ है, और लिखा भी कौन लिखता, हम ही तो लिखने वाले हैं, तो हम अपने लिए थोड़ी लिखेंगे ऐसा रूल। तो वो कह रही है कि ये फ्रीडम काश हमें भी मिलती। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, अब स्ट्रेंज टाउन से भी आप समझ लीजिए, वीमेन आर नॉट एंटाइटल्ड टू गो आउटसाइड देयर विसिनिटी इफ दे हैपन टू गो एंड हैव अ ड्रिंक आउटसाइड देयर विसिनिटी, दो दे विल बी जज्ड, they will be evaluated, their character will be evaluated completely, their existence would be in question mark। वो उस पर बहुत सारे सवाल हो जाएंगे अगर घर से बाहर गई वो और इस तरह के काम कर लिए, ड्रिंकिंग एट होटल्स इन सम अनफैमिलियर प्लेसेस, अननोन प्लेसेस, तो वो तो फिर कैरेक्टर ही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है उसका। इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स इट इज़ आई हु लव, इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील शेम। इवन लाफिंग, कि भाई आप खुले में हंस भी नहीं सकते, मतलब उस टाइम की बात है जब ये मतलब 1960s की 70s की, कि वीमेन वर सो कंट्रोल्ड, इवन देयर लाफ्टर वाज कंट्रोल्ड, कि जोर से नहीं हंसना, नो सुसाइड, दूसरों के सामने जोर से नहीं हंसना, दांत फाड़ के नहीं हंसना, ना बिल्कुल सप्रेस योर लाफ्टर, इवन सप्रेस योर इमोशंस, इवन हर तरह की चीज़ें सप्रेस करनी है, सप्रेशन। तो लेकिन मैंने कहा क्या है, ही कैन लाफ आउट लाउड, ही कैन गीगल एंड ही कैन गफो, किसी तरह के दांत फाड़ के हंसे या पेट फाड़ के हंसे, कैसी हंसे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हंसो, हंसते हंसते मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आई हु मेक लव एंड देन फील शेम, मतलब इलेजिटिमेट लव, इलिसिट लव, मैन कैन परफॉर्म और डू इलिसिट लव, they can have extramarital affairs and then they can have these feelings, these experiences, these relations outside their marriage, in fact if at all they are married, तो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, मतलब they can, even though they feel shameful, even though they feel guilt ridden sometimes, guilt ridden feel करते हैं तो वो उनके पाप धुल जाते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो वो कह रहे कि ये फ्रीडम, दिस इज व्हाट फ्रीडम मीन्स। और ये दो चश्मे हैं एक वुमन को, एक मैन को देखने के, इवेल्युएट करने। इट इज आई हु लाई डाइंग विद रैटल इन माई थ्रोट, लाई डाइंग इन अ रैटल इन माई थ्रोट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक जैसे रैटल तो खड़खड़ाहट को कहते हैं, साउंड, रस्टलिंग साउंड, तो वो अब यहाँ पे क्या है कि मतलब गिल्ट, लाई डाइंग एंड हैविंग ए गिल्ट, क्योंकि आपने गिल्टी काम किए हैं। एट द एंड यू रियलाइज दैट यू हैड डन समथिंग विच वॉज नॉट सॉलिसिटेड, विच वॉज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड, विच यू शुड हैव अवॉइडेड। तो वो कहीं ना कहीं वो गिल्ट है अपने उस लास्ट टाइम पर। यहाँ से मतलब कब वो अपने आप को कहने लगी ये पता ही नहीं चला। आई एम ए सिनर, आई एम ए सेंट, जब आप इवेल्युएट करते हो तो कहीं लग जाता है कि ये शी हैज सेड who is a sinner and who is a saint. She calls herself also a sinner and a saint. I have also tried to take this liberty in my life also. मैंने भी कोशिश की है कि लिबर्टी एंजॉय की जाए। तो इन दैट सेंस आई एम ए सिनर, आई एम ए सेंट। जहाँ तक लोगों के सामने आने की बात है तो दो चेहरे हैं, ये दो चेहरे, एक जो हम दिखाना चाहते हैं, एक जो हम होते हैं, एक जो हमारी डार्कर साइड है जो हम किसी को रिवील नहीं करते, और एक जो हम दूसरों को इमेज अपनी दिखाते हैं। तो जो इमेज दिखाते हैं वो सेंटली इमेज हो सकती है, बट हु नोज देयर लाइज अ डेविल इन दैट गाइज। अंदर सिनर है, बाहर सेंट है। तो आई एम बोथ। आई डोंट फील मीन्स शेमफुल in recalling this or in accepting this. I accept that I had done also certain things which are not allowed in the society. I am a saint, I am a sinner, I am the beloved and the betrayed. I have been in love with many people and I have been betrayed at times also. कोई बात नहीं, it was like this only. सनम तू है हर जाई तो अपना भी तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। उसने धोखा दिया तो कोई बात नहीं, और सही। तो आई हैव बीन लव्ड, आई फेल इन लव, आई वॉज बिट्रेड, आई वॉज यूज्ड, मिसयूज्ड, एनीवे लेट इट बी। दिस हैज बीन द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। तो आई हैव बीन अ सेंट एंड आई हैव बीन अ सिनर, आई हैव बीन बिट्रेड, आई हैव बीन लव्ड, आई हैव बीन लव्ड, आई हैव बीन रिजेक्टेड। एनीवे दिस इज लाइफ।
Both the things are possible when you experiment. So there are certain things that are bound to happen in life. I have no joys that are not yours, no acts which are not yours. I empathize you. I don't have any joys which are not yours. मतलब I also have the kind of joys that you have in your life. The same joys. अब यहाँ से मतलब समझ लीजिए कि ये एक्सपेक्ट करना चाह रही है कि I should also have the kind of joys and happiness that a man has in his life. I want to experience those happiness, those moments of happiness which a man has. तो मैं मेरी लाइफ में वो हैप्पीनेस है ही नहीं जो आपकी में नहीं है. मतलब I also have the kind of happiness that you have in your life. और दूसरी तरफ I don't have also those sorrows which you don't have in your life. तो आपकी लाइफ में जो सोरो नहीं है वो मेरी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस नहीं है वो मेरी लाइफ में नहीं है. आई हैव दोज मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस विच यू हैव. तो आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स. मतलब आई कंप्लीटली एम्पैथाइज विद योर जॉयज एंड पेन्स. आई टू कॉल माई सेल्फ आई. अब वो आई जो था मैन, उससे अपने आप को लास्ट में कह दिया कि आई अल्टीमेटली आई ऑल्सो कॉल माई सेल्फ आई. मीन्स दिस मैन. I completely associate myself with men. I also want to enjoy the liberty, the freedom, the kind of non-restrictive temperament by the society. वो सब मैं चाहती हूँ जो कि मैन फ्रीली इंजॉयज करते हैं. तो वो सब चीज़ है, क्योंकि ये डुअलिटी है इस सोसाइटी में कि देर आर सर्टेन रूल्स डिफरेंट फॉर मैन एंड डिफरेंट फॉर वीमेन. ऑन द वन हैंड you claim that you have created the things for equality for both the genders, both the sexes, and on the other hand there are certain conventions exclusively reserved for women and exclusively unreserved for men. उनके लिए कुछ है ही नहीं रिस्ट्रिक्शन के नाम पर, इनके लिए सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके लिए, सारी फ्रीडम लिबर्टी उनके लिए. तो वो जो है उसी तरह की, चाहे वो सिनर से लेकर के सेंटहुड तक और इंजॉइंग द लाइफ टू इट्स लीज, उससे लेकर के रिस्ट्रिक्शन तक, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं उन सब तक, सब मैं वो चीज़ें एंजॉय करना चाहती हूँ जो कि मैन के लिए है. और अल्टीमेटली मैं अपने आप को उस मैन से एसोशिएट ही करना चाहती हूँ. I simply don't recognize myself a complete typical woman. I'm a human being, so call me a human being rather than man or woman. Don't segregate this, don't divide this society. जो लिबर्टी है वो लिबर्टी दोनों के लिए एक सी होनी चाहिए, जो फ्रीडम है वो दोनों के लिए एक सा होनी चाहिए, वो जो एन्जॉयमेंट्स की जो लिमिटलेसनेस है वो दोनों के लिए होनी चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो दोनों के लिए होने चाहिए. That's why in the end she has associated herself with this particular man also. और ये particular man नहीं है, ये every man है, उस एवरी मैन के सर. तो एवरी मैन शुड बिकम एवरी वुमन, एवरी वुमन शुड बिकम एवरी मैन. और शी असर्टेड हर फेमिनिज्म इन द बोल्डेस्ट टर्म्स. जो रॉ फीलिंग्स थी वो रॉएस्ट फीलिंग्स हैं इनकी, ये एक्सप्रेशंस हैं जो कि इन्होंने अपनी इस पोम में किया है इनकी. और एक माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें भी ये बड़े जो अनइनहिबिटेड होकर के इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है. She does not feel shame when she has to reveal something dark from her life. कुछ ऐसा जो कि नहीं बताना चाहिए वो भी इन्होंने बताया, बोल्ड तरीके से बताया. तो जो कन्फेशनल पोइट्री के ये एलिमेंट भी होता है. इसमें आप कमला दास के साथ सिल्विया प्लैथ, एमिली डिकिंसन, इन राइटर्स को भी आप एसोशिएट कर सकते हो. These writers have also been very confessional in their tone. They felt no inhibitions when they expressed themselves. So that is all for now. Hopefully through this video I was able to make sense and you were able to understand the comprehensive explanation. Like this video and share it among your friends who are also pursuing PG and UG. If you are new to the channel, so make it as a point to subscribe to it so that you don't miss all these forthcoming videos. So keep learning, stay motivated. Thank you.